Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the previous video, we have discussed about the syllabus of psychology for your CUET examination. So today we are going to begin with the very first chapter of it, that is variations in psychological attributes. So let's begin. First of all, we will learn about individual differences in human functioning. Individual differences in human functioning is basically how individual differ from one another. आपके कौन से ऐसे ट्रेट्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको औरों से यूनिक बनाती हैं या डिफरेंशिएट करती हैं. These are basically the variations or distinctiveness that you make differ from one another. We will talk about the different examples, for example, age, intelligence, coping style, self-awareness and motivation. When we talk about the age is basically, हम अगर इसमें देखते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को तो उनका इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो होता है वो अलग होता है जो कि उन्हें औरों से यूनिक बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो इन्फेंट्स होते हैं उनका फोकस अपने ऑब्जेक्ट्स की तरफ होता है, वो उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या उन्हीं लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो कि उनके काफ़ी क्लोज या नोन हो. तो उनका एज स्पेसिफिक जो बिहेवियर है वो उन औरों से अलग बनाता है. कुछ इन्फेंट्स जो होते हैं वो क्राई बेबी होते हैं, कुछ जो होते हैं काम एंड कंपोज होते हैं. तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें उन्हें औरों से डिफ्रेंशिएट करती है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स दैट आर इन देयर एडोलसेंट एज, उनकी ज़्यादातर फोकस उनके एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो स्टूडेंट्स, या अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आउट गोइंग बिहेवियर. ऑल दीज आर दी such kind of traits that make them unique from others. When we talk about elder people, they are more focused over their younger generation. उनका सारा contribution अपनी younger generation की तरफ रहता है. तो ये कुछ एज रिलेटेड डिफरेंसेस हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से डिफर करवाता है. When we talk about the intelligence, यहाँ हम बात करते हैं उनके IQ लेवल का. Of course we all know people possess different IQ level. कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, तो कुछ एक्सीलेंट होते हैं. This depends on the cognitive ability that a person possess. Here is another example of intelligence. You have seen few of the students are intellectually disabled that have the IQ below 70, and some of the students have IQ above 130. Those are contributed as intellectually gifted students, जिनका excellent कहीं ना कहीं IQ level होता है. तो यहाँ पर हम इंटेलिजेंस को देखें तो वो भी इंडिविजुअल को औरों से डिफर करता है. When we talk about the motivation, motivation is basically हम किसी भी काम को करने के लिए कितने मोटिवेटेड रहते हैं. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस बिहेवियर. यहाँ पर मोटिवेशन को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, सम पीपल अचीव अ पर्टिकुलर गोल आर मोटिवेटेड विद देयर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. मतलब अंदर से ही उनकी कहीं ना कहीं विल पावर होती है उस गोल को अचीव करने के लिए या उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एंड सम ऑफ दी स्टूडेंट्स एंगेज to do a particular task because of the external motivation, or you can say extrinsic motivation. वो based होती है आपके जो external factors जो उस particular task से relate करते हैं. For example, अगर आपको किसी भी activity में आप participate करते हैं, curricular activity आपकी dancing है या music है, ऐसी किसी performing activity में आप participate कर रहे हैं, तो आपका जो main motive होगा उसके पीछे क्या होगा? या तो आपकी intrinsic motivation उसमें work करती है that you are dedicated towards that particular thing, या वो आपकी hobby होगी. But if you get a reward for that, like you are winning a trophy for yourself or for your school, you are representing your school or college at a national level, तो वो आपका extrinsic motivation की तरह काम करता है. यहाँ पर भी हम individual differences देखते हैं. Some are like particularly follow the curricular activity section. Some students are only studying for their academic goals to achieve their good marks, to achieve their good grades. Some of the students may engage in between. उनको academics में भी average करना है, साथ साथ अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, हमारा हेयर कलर, आई कलर, ये सब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कंट्रीब्यूट करता है. इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल. हर किसी का जो पैटर्न होगा बिहेवियर का डिफरेंट होता है. ऐसी हर किसी की जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी डिफरेंट होती है. Our personality, our cognitive abilities, our thinking pattern, our emotional stability, all these factors contribute to our individual differences. Next is the situationism. Now situationism is basically those situations or circumstances which predict a person's behavior in external situations. कभी कभार क्या होता है, situationism एक तरह का ऐसा टर्म है जो हम यूज़ करते हैं सिचुएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से जब हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, जब हम अपने बिहेवियर के अंदर कोई चेंज ले आते हैं जो कि सडनली होता है, दैट इज सिचुएशनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर इन अ क्लासरूम,
in front of your teacher you would be very relaxed, in front of with your friends you would be like fun loving, but at a moment your principal comes in the classroom, आपका behavior जो होगा सडन चेंज हो जाएगा. Why so? Because आपकी situation suddenly change हो गई. ऐसे ही आप घर पर होते हैं आपका behavior different होता है, but जब कोई relatives आ जाते हैं तो आपका behavior different होता है. All these contributes to your situationism factor. Next we will understand the individual differences based on your inherited factor and acquired factor. Inherited is basically that comes through your genetics. आपका genetic component इसमें बहुत important role play करता है कि आपकी genes का endowment कैसा है. These are also characterized into three parts, that is physical, mental and temperamental. When we talk about the physical characteristics, we talk about the height and weight और complexion of an individual. यहाँ पर height and weight कोई इंसान हो सकता है tall हो आपसे, कोई short हो, कोई थिक हो तो कोई थिन हो. यहाँ पर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं. योर आइज कलर, योर वॉइस ऑफ टोन, ऑल दीज मेक एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू योर फिजिकल फैक्टर. नेक्स्ट इज योर मेंटल वन. Mental, here we talk about the cognitive abilities that a person possess. How you process information, how you think about the world around you, what kind of problem solving techniques you used to solve a particular problem. All these contribute to your mental component. Next is your temperamental. Temperamental is basically characteristics that an individual possess in himself or herself. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं नेचर में क्योंकि उनका टेम्परामेंट ऐसा होता है. we use the term short tempered ना. all these are come through your temperament section. कुछ होते हैं stressful situation में भी calm and composed रहते हैं, कुछ होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे भी aggressive nature show करते हैं या upset हो जाते हैं या self confidence self doubt में engage हो जाते हैं. all these contribute your temperament. We have talked about the inherited component. Now we will talk about the acquired one. These are your personal characteristics. When we talk about personal experiences or characteristics is basically which are derived through your environment. यहाँ पर environment का बहुत ज़्यादा influence होता है. Acquired characteristics में society बहुत important role play करती है. What kind of environment you are building yourself, how schooling you are doing, आपका family और friends का environment कैसा है, आप society से कितना influence हो रहे हैं, what is contributing you, आपकी values कैसी है, वो सब आपकी acquired component में important role play करती हैं. So first part is the social one. Social is आप कितनी societal के इफेक्ट हो रहे हैं, सोसाइटी का आपके ऊपर क्या इफेक्ट है, सोसाइटी का कितना एक कंट्रीब्यूशन है. आप आउटगोइंग है या रिजर्व नेचर के हैं, आपको सोशली विड्रॉन रहना पसंद है, सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, आप कैसी कैसे रूटीन को फॉलो करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सेट ऑफ पैटर्न्स दैट यू यूज इन दी सोशल सिचुएशंस, हाउ यू सर्वाइव योर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. ऑल दीज कम्स इन दी सोशल कॉम्पोनेंट. नेक्स्ट इज योर कल्चरल वन. कल्चरल इज बेसिकली आप कल्चर टू कल्चर कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव सीन नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन कल्चर. यू हैव सीन उनका कल्चर का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, हमारा बहुत डिफरेंट है. आपकी स्लीपिंग शेड्यूल्स, ईटिंग हैबिट्स, योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, ऑल दीज वराइड फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, इनफैक्ट इंक्लूडिंग योर पॉलिटिकल बिलीव्स. ये सब चीज़ें भी एक कल्चरल डिफरेंशिएशन दिखाती हैं जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ सकते हैं. सेकेंडली अगर हम बात करें एशियन और वेस्टर्न कल्चर की तो वहाँ पर भी हम एक डिफरेंस नोटिस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एशियन कल्चर जो है वो कलेक्टिविज्म की बात करता है, उनका कलेक्टिविस्टिक कल्चर है. दे फॉलो ओवर अदर पर्सनस प्रेफरेंस फर्स्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वेस्टर्न पीपल फॉलो दैट, दे थिंक अबाउट वन सेल्फ फर्स्ट. तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है जिनसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल कॉम्पोनेंट. एजुकेशनल कॉम्पोनेंट इज बेसिकली हाउ योर एजुकेशन basically comprises with their individual differences. Education में आपके academic goals, आपके academic achievements, how you are doing with the grades, आप अपने teachers के प्रति कैसे हैं या आपका academic session कैसा है, what kind of schooling you are getting, all these comes under educational sectors. आप अपने academic goals को ज़्यादा कहीं ना कहीं weightage देते हैं या आप curricular activities में भी engage होते हैं, ये सब आपकी educational qualifications को contribute करता है. Next is the emotional one. When we talk about the emotional one, we talk about the stability of one's own emotion. आप खुद के emotions की understanding कैसे रखते हैं, औरों की emotions को आप कैसे समझते हैं, how empathetic you are towards others. All these are your emotional component. Basically हम अपने personal stability भी तभी रख सकते हैं, अपने mental component को भी तभी अच्छे से use कर सकते हैं जब हम emotionally stable हैं. हम किसी भी situation को कैसे handle करते हैं उसमें emotional component एक बहुत important role play करता है. Next is now we will discuss some of the interesting facts about individual differences. हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे questions की जो कि objective based questions में generally put up किए जाते हैं. Who is the father of individual differences? Now I have
as you can see, we have two of the terms here. One is the Stern. Stern was the first person who gave the concept of individual differences. You have to understand the difference between these two, because questions sometimes are tricked through such techniques when you have similar terms but different designated persons. And Charles Darwin was the first person who showed the scientific interest in the study of individual differences. And when we talk about the who studied first the concept of individual differences, was the Galton, who did the experimentation in this field. Galton की वजह से ही individual differences को आज differential psychology के नाम से जाना जाता है. तो you should be known about these three people who has put their contribution in the field of individual differences. Next is types of individual differences. First we will discuss about the physical differences. Physical differences क्या होते हैं? जो आपको औरों से physical structure में अलग बनाते हैं, like your height and weight. सबका अपना अपना एक height होगा, सबका अपना अपना optimal weight होगा जो उन्हें औरों से अलग बनाता है. आपकी इसमें personal characteristics भी काम करती हैं. आपका texture कैसा है, how people perceive you, all these contribute to your physical differences. आपका hair length, okay, your body complexion, your habits that you show in front of others are contribution of your physical differences. Next is the differences in intelligence, basically your IQ level. That is, you are average, you are below average, or you are excellent. All these contributes to differences in your level of intelligence. आप problem solving activities को कैसे कहीं ना कहीं समझते हैं, आपके आगे कोई प्रॉब्लम है उसका न्यू सोल्यूशन आप कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये सब आपकी इंटेलिजेंस लेवल से कहीं ना कहीं पता चलता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स. नाउ एटीट्यूड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड थ्रू योर चाइल्डहुड. किसी भी चीज़ के प्रति आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन, आपकी उसमें फैमिली का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है एज वेल एज योर इन्वायरमेंट. इट इन्फ्लुएंसेस मच ऑफ इट. आपका औरों के प्रति कैसा एटीट्यूड है, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ कैसा एटीट्यूड है, आपके बिलीफ सिस्टम कैसा है, हाउ मच यू आर एंगेज इन स्टीरियोटाइप्स, आप किससे बिहेवियर को फॉलो करते हैं, किस पैटर्न को फॉलो करते हैं. बेसिकली एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड थ्रू योर रोल मॉडल्स. अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, उनसे भी आपका एटीट्यूड जो होता है वो काफ़ी हद तक या तो आप सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं या उनके जैसी एक्टिविटीज़ में आप एंगेज होते हैं. नेक्स्ट इज योर डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स आर बेसिकली दोज एबिलिटीज़ दैट पीपल टू पीपल वेराई. अब किसी के लिए अचीवमेंट हो सकता है पावर हो, कि उसे पावरफुल होना है तो उसके लिए वो अचीवमेंट है. किसी के लिए अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करना अचीवमेंट होती है कि हमें तो हाईएस्ट ग्रेड चाहिए, हमें बेस्ट परसेंटेज चाहिए, वो हमारे लिए अचीवमेंट है. कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो होगा पास होना भी अचीवमेंट होती है, दैट वी हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स, तो हमारी वही अचीवमेंट है. किसी के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना अचीवमेंट है, किसी के लिए किसी कंपनी का बॉस बन जाना अचीवमेंट है. सम ऑफ यू इफ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एन एथलेटिक सेक्शन, you have played a national international, you have seen your achievement as well. So achievement differences are also vary person to person. इसमें आपके इंटरेस्ट और हॉबीज भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं. नेक्स्ट इज योर डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी. अब मोटर एबिलिटी में डिफरेंसेस क्या है? टास्क मैनेजमेंट. आप किस तरह का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप किस किस टास्क में एंगेज होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ शेड्यूल यू आर फॉलोइंग. अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपका किसी भी टास्क में एंगेज होने का क्या तरीका है, what patterns or tactics you are following, all are these contribute to your task management. आपको स्कूल भी जाना है, कोचिंग में जाना है, CUET की भी प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई भी करनी है, इतना सारा मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं. इसमें एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेदर यू आर परस्यूइंग अ पर्टिकुलर गोल और यू आर एंगेजिंग इन मल्टीटास्किंग. दीज टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन योर टास्क मैनेजमेंट, दैट इज योर मोटर एबिलिटी. तो जनरली अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट को एक टाइम पे पर्टिकुलर गोल को ही परस्यू करना चाहिए रादर देन एंगेजिंग इन डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि बाद में एंड ऑफ द डे सब कुछ मेस्ड अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज योर डिफरेंसेस ऑन द अकाउंट ऑफ जेंडर. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जेंडर के बेसिस पर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझते हैं. इट इज़ द मेजर सेक्शन दैट पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेसिकली जो आपने स्टडीज़ भी देखी होंगी वो भी जेंडर डिफरेंसेस के ऊपर ही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम उनकी लैंग्वेज, उनकी थिंकिंग एबिलिटी, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स को हम पढ़ सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द जेंडर एबिलिटी, तो अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो स्टडीज हैव शोन दैट males have more logical and spatial reasoning stronger than the females. And we talk about the females, we have learned that females are more good with their verbal section and language portion. Basically उनका language section strong होता है, उसमें कुछ scientific reasons भी हैं. आपका brain का जो particular part उसमें activated है, या आप किस तरह से चीज़ों को process कर रहे हैं, ये सब भी depend करता है. ऐसा 100% ट्रू नहीं है कि वो चीज़ फीमेल और मेल के लिए है. बहुत सी फीमेल्स ऐसी भी है जिनका स्पार्शियल मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, बहुत से मेल भी ऐसे हैं जिनका वर्बल सेक्शन अच्छा है. बट इन जर्नल वी हैव सीन सच काइंड ऑफ डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज योर डिफरेंसेस इन द अकाउंट ऑफ इमोशंस.
अब इमोशंस की अगर हम बात करें तो हमारी एबिलिटी हम इमोशंस को कैसे परस्यू करते हैं, दैट ऑल्सो वेराई पर्सन टू पर्सन. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस लेवल, ऑल दीज बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल अनस्टेबिलिटी. ऑन द अदर एंड सम ऑफ यू मस्ट बी लाइक काम एंड कंपोज, फोकसिंग ओवर देयर गोल्स. कुछ बच्चों को भी टेंशन होगी, हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, हाउ विल डू इट. बट यू हैव टू स्टे स्टेबल फर्स्ट टू अंडरस्टैंड योर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड यू. आपके इन्वायरमेंट को भी आप इमोशनल स्टेबिलिटी से समझ पाते हैं, औरों को भी आपकी जजमेंट जो है और जो अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स है, all these are due to your emotional stability. It also differs from person to person. For example, फीमेल्स का भी अगर हम अदर फीमेल से कंपैरिजन करें, हो सकता है कुछ इमोशनली स्ट्रांग है तो कुछ इमोशनली वीक है. मेल्स ऑन द सेम अकाउंट प्लेज द सिमिलर रोल. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द questions that may be put up in your examination, or you can see such kind of pattern is followed. Such kind of questions have to be put up for your upcoming exam. The very first is, who showed scientific interest in individual differences? We have learned previously, we have talked about it in detail. You have 4 options, that is Stern, Spearman, Charles Darwin and Sir Galton. So he showed the first interest was Charles Darwin. Next, now we will discuss which perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. In starting, we have discussed the effect of external factors. Options is environment, natural selection, situationism and personality. So the correct answer is situationism. You can practice such questions for your upcoming exam. In the next video, we are going to discuss further about the first chapter only. I hope you liked this video. Do comment your problems and doubts, your queries. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Thank you.